Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 14 for Nutrition for the Community and here we will discuss food storage. The topics to be covered are Introduction, Food Spoilage, Classification of food based on perishability and food storage. Now first is Introduction. Proper storage of food that is produced, purchased or prepared for the family is the first and the foremost step in effective utilization of family's food resources. It also plays a significant role in the efficient utilization of the family's income and ultimately influences the utilization of the available resources of the nation. फूड को प्रॉपर्ली स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ख़रीदते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं फैमिली के लिए, उसको सबसे पहले स्टोर करना पड़ता है और यही एक प्रॉपर स्टेप होता है फूड को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए. और ये जो चीज़ है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम अपनी फैमिली की इनकम को और जो भी चीज़ें उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें. As a matter of fact, every item of food needs immediate attention the moment it is harvested, manufactured and slaughtered unless used immediately because the process of change in the composition of food begins soon after. So, कोई भी item जो हम परचेज करते हैं या फिर जब भी हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या स्लॉटर करते हैं, उस टाइम पे उसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके और उसकी कॉम्पोजिशन चेंज ना हो. मोर ऑफन दीज चेंजेस आर ऑफ द वर्स एंड आर टर्म्ड एज स्पॉइलेज. जितने भी ये चेंजेस होते हैं जो उसकी कॉम्पोजिशन में आते हैं, अगर उसको प्रॉपर अटेंशन ना मिले उसको हम स्पॉइलेज कहते हैं. In food storage, our effort is to minimize, if not totally, prevent such spoilage. और food storage में हमारा यही हमेशा effort रहता है कि prevent ना भी कर सके तो spoilage को at least minimum रखें. Now, food spoilage. The quality of a food item is measured in terms of its sensory properties, that is, properties that can be detected by our senses of sight, smell, touch and taste. These are appearance, texture, flavor and aroma. So, एक फूड आइटम की क्वालिटी को हम हमेशा अपनी सेंसरी प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में मेजर करते हैं. जैसे उसका साइट यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका स्मेल कैसी है, देन उसका टच यानी कि टेक्सचर और फ्लेवर कैसा है, एंड टेस्ट यानी कि उसकी अरोमा दैट इज स्मेल कैसी है. देन in addition to these, three other important quality factors which cannot be judged by our senses alone are nutritional value, safety and shelf life, that is keeping quality. So और तीन चीज़ें जो हमारे सेंस ऑर्गन सेंस नहीं कर सकते लेकिन फूड स्पॉइलेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, सेफ्टी और शेल्फ लाइफ यानी कि उसकी क्वालिटी कितनी बरकरार है. एनी एडवर्स चेंज इन अ फूड्स क्वालिटी may be considered spoilage यानी कि डिटीरियोरेशन. अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है फूड की क्वालिटी में जो हमने अभी पढ़ा है जैसे, तो उसको हम स्पॉइलेज कहते हैं या डिटीरियोरेशन कहते हैं. If the spoilage of food is limited to lessening of its appearance, texture, taste, aroma or its nutritive value, it may be acceptable as something to eat under certain circumstances. If, however, spoilage renders the food unsafe to eat, then it has to be discarded without a second thought. अगर spoilage जो है वो सिर्फ इन चीज़ों से लिमिटेड है कि जैसे उसकी अपीयरेंस खराब हो गई है या उसका टेक्सचर पहले जैसा नहीं रहा, टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, स्मेल थोड़ी डिफरेंट हो गई है या फिर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में चेंज आया है थोड़ा सा, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे हमारे पास खाने को कुछ और नहीं है. लेकिन अगर जो स्पॉइलेज है उससे ये पता चल रहा है कि फूड अगर हम खाएंगे तो हमें किसी टाइप का डिजीज़ हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, तो तब हमें बिल्कुल फूड को डिस्कार्ड कर देना चाहिए. Now the causes of food spoilage. The major causes of food spoilage are microorganisms and natural enzymes. Insects and rodents also play an important role in food spoilage. Now first is microorganisms.
Foods are normally contaminated with microorganisms. They are present everywhere in the soil, water, and air, on the skin of cattle and the feathers of poultry, and within the intestine and all other cavities of the animal body. They are also present on the skin and peel of fruits and vegetables, and hull of grains and shells of nuts. They are there on all equipments used for cooking, as well as on the hands, skin, and clothing of persons handling food. Fortunately, they are generally not found within healthy living tissue, such as flesh of animals or the flesh of juice of plants. However, they are always present near and around, ready to invade the flesh of plants or animals through a break in the skin. सो ज़्यादातर फूड्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही ख़राब होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, पानी में और हवा में. ऐसे ही कैटल जो होती है जैसे गाय, बफेलो, इनकी स्किन पे भी होते हैं, पोल्ट्री के फेदर्स में होते हैं, और एनिमल बॉडी के अंदर भी होते हैं, इंटेस्टाइन में या फिर जो भी कैविटीज़ होती हैं. ज़्यादातर वो स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स की, और उनके पील्स यानी कि छिलकों में भी होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, ग्रेन्स के हल में जो उनका कवर होता है, और नट्स के शेल में. देन जिस इक्विपमेंट से हम खाना बना रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं बर्तन, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. साथ में जो पर्सन खाना बना रहा है या फिर जो फूड को हैंडल कर रहा है, उसके हाथ में, स्किन में और क्लोथ्स में भी होते हैं. लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी हेल्दी लिविंग टिश्यू में नहीं होते, लेकिन हमेशा वो ये हमेशा वो ऐसा रहता है कि जहाँ पे भी स्किन वीक हुई या जहाँ पे भी स्किन ब्रेक हुई, वो वहाँ से एंटर कर जाते हैं. तो इसलिए वो हमेशा इन्वेड करने की कोशिश करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आते हैं, ईस्ट, मोल्ड्स, एल्गी, प्रोटोजोन्स और बाकी अदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं. अमंग दीज बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज. बैक्टीरिया, मोल्ड और ईस्ट की वजह से सबसे ज़्यादा फूड स्पॉइलेज होती है. दे फीड ऑन द फूड इन विच दे लिव एंड कॉज वेराइटी ऑफ चेंजेस इन इट. बैक्टीरिया, मोल्ड और ईस्ट उन्हीं चीज़ों को खाते हैं जिसमें वो रह रहे हैं, यानी कि उन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को खाते हैं जिसके अंदर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, और इसी वजह से उन फूड प्रोडक्ट्स में स्पॉइलेज होती है, क्योंकि वो उसकी वजह से चेंज कर देते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल and produce changes which lead to spoilage of food. लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया यूजफुल भी हो सकते हैं. जैसे कि कर्ड बनाने के लिए हमें एक बैक्टीरिया चाहिए होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड को उसका अलग से फ्लेवर देता है. ऐसे ही विनेगर प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल एक्शन से. सो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा ही खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं. नाउ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉल लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, कर्व्ड, लॉन्ग, स्लेंडर, कॉक स्क्रू. देन दे प्ले अ मेजर रोल इन स्पॉइलेज ऑफ मीट, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिश प्रोडक्ट्स. बैक्टीरिया डू नॉट थ्राइव ऑन फूड्स विच आर डिस्टिंक्टली एसिडिक और अल्कलाइन इन नेचर. बैक्टीरिया कभी भी उन पे थ्राइव नहीं करते या उन पे डिपेंड नहीं होते जो कि एसिडिक या अल्कलाइन होते हैं नेचर में. वो हमेशा फूड में बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं जो कि न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, मिल्क, एग, मीट, फिश. ऐसे ही ईस्ट जो होती है, ईस्ट एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है. ईस्ट में भी ईस्ट की वजह से भी फूड में फर्मेंटेशन होती है, and fermentation by itself is not altogether an undesirable process. fermentation भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नुकसानदायक हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि ब्रेड मैन्युफैक्चर करने के लिए, ढोकलाज, इडलीज, इन सब में fermentation बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देन मोल्ड्स आर माइन्यूट प्लांट्स. मोल्ड्स भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक. दे ग्रो ऑन ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स एंड प्रेफर वार्म, डैम्प एंड dark places. They do look terribly ugly when growing on food. For example, the black hairy growth of molds on bread or the grey fuzzy growth on cheese. They do not, however, produce harmful substances. Quite often when the growth is slight, you can physically remove it and eat the rest of the food without any risk whatsoever. If, however, the growth of the mold is heavy, the whole mass of food may be changed in flavor and sometimes in texture.
देन नेक्स्ट इज नेचुरल फूड एंजाइम्स. जितने भी हमारे हेल्दी फूड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें अपने अपने एंजाइम्स होते हैं जो उनके इनसाइड प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन एट्सेट्रा. These enzymes continue to remain active even after the plant has been harvested or the animal slaughtered, and the processes they help will continue. So जब enzymes जो होते हैं वो तब भी होते हैं plants में और vegetables या animals में जब plants को harvest कर लिया जाता है, या फिर animals जब slaughter हो चुके होते हैं यानी कि मर जाते हैं, उनको as meat यूज़ किया जाता है, उस टाइम पे भी उनमें enzymes का process continued रहता है. And some of the processes are desirable to a certain degree. For example, the ripening of papaya, custard apple, mangoes and tomatoes after harvesting. Next is insects and rodents. Now they are particularly destructive to cereals, grains and to fruits and vegetables. जो insects और rodents होते हैं वो ज़्यादातर destructive होते हैं cereals के लिए, जैसे कि जो हमारे crops वगैरह होते हैं उनके लिए, fruits और vegetables के लिए. Worms, bugs, weevils and moths may damage food items both in the field as well as in the storage at home. In addition to eating away the food, they damage it and thereby expose it to the bacterial, yeast and mold infections. जो इंसेक्ट्स और rodents होते हैं वो फूड को डैमेज करते हैं क्योंकि वो फूड खा जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड इन्फेक्शंस होने लाजमी है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड स्पॉइलेज. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो टेम्परेचर, मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा फूड को ख़राब कर देते हैं. ऐसे ही मॉइस्चर की वजह से भी जब उसमें कुछ भी ह्यूमिडिटी जैसे होती है तो उस टाइम पे भी हमारे कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं जिनमें, जैसे कि टेम्परेचर. Each microorganism has an optimum growth temperature, that is the temperature at which it grows best and multiplies most rapidly. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनको एक सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो वो उसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं. सिमिलरली एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट एक्टिव एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. ऐसे ही माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइम एक्शन जो होते हैं वो या तो ऑप्टिमल टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को. एंड नॉर्मली फ्रीजिंग एंड चिलिंग आर अडेप्टेड फॉर स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर. इसीलिए हम ज़्यादातर फ्रीजिंग और चिलिंग को अडेप्ट करते हैं ताकि फूड को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके बैक्टीरियल एक्शन रोका जा सके. नेक्स्ट इज मॉइस्चर एंड ड्राइनेस. एक्सेसिव मॉइस्चर और ड्राइनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल क्वालिटी इन स्टोर्ड फूड्स. जो मॉइस्चर और ड्राइनेस होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि उसमें हम ऑप्टिमल क्वालिटी मेंटेन करते हैं स्टोर्ड फूड्स की. फूड्स दैट आर बेस्ट व्हेन मॉइस्ट डिटीरियोरेट ऑन ड्राइंग एंड दोज दैट शुड बी केप्ट इन अ ड्राई स्टेट डिटीरियोरेट व्हेन मॉइस्ट. और कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जो कि मॉइस्ट टेम्परेचर पे डिटीरियोरेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट टेम्परेचर में ठीक रहते हैं और ड्राई करने पे डिटीरियोरेट होते हैं, ख़राब होते हैं. मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज फॉर एंजाइम एक्शन. मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए और एंजाइम एक्शंस के लिए. देयरफॉर मॉइस्चर ऑन द सर्फेस ऑफ एनी फूड एनकरेजेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स. देन एयर एंड ऑक्सीजन. अब विटामिन जो होते हैं जैसे कि ए और सी, उनमें फूड कलर्स होते हैं. Vitamins, particularly A and C, as well as food colors and flavors, get destroyed when exposed to air and oxygen. जो A और C vitamins होते हैं और कुछ food colors भी होते हैं, flavors भी होते हैं, वो air और oxygen की वजह से destroy हो जाते हैं. Oxygen also helps growth of molds. Oxygen की वजह से molds भी बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, और इसीलिए पैकेज फूड्स जो होते हैं वो एक एफर्ट होता है ताकि उनका ऑक्सीजन उन पे अफेक्ट ना कर सके, और वो वैक्यूम बेस्ड होते हैं. और बाय फ्लशिंग दी फूड कंटेनर्स विद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कम कर देता है, और जिसकी वजह से मोल्ड्स की डेवलपमेंट रुक जाती है. नेक्स्ट इज लाइट.
Some vitamins, particularly riboflavin, vitamin A and vitamin C, and many food colors are destroyed by light. Sensitive foods are often protected from light by using containers that keep light out, for example, dark colored bottles and glazed pottery jars used for keeping pickles. Then, time. Any food is at its peak quality for a certain time after it is harvested, slaughtered or manufactured, and this period is very short, from just a few hours after harvest, as in the case of fresh peas and fresh corn, to may be a day or two. अब टाइम के साथ साथ भी फूड जो है डिटीरियरेट होता रहता है. जब हम उसको नया नया खरीदते हैं, नया बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है. धीरे धीरे करके जैसे जैसे आवर्स बीतते हैं और दिन बीतते हैं, फूड की क्वालिटी कम होती जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी. अब ऑन द बेसिस ऑफ क्विकनेस with which a food item gets spoiled, we can place them into 3 categories. अब फूड कितनी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज में फूड को क्लासीफाई कर सकते हैं: पेरिशेबल फूड्स, सेमी पेरिशेबल फूड्स एंड नॉन पेरिशेबल फूड्स. नाउ फर्स्ट इज पेरिशेबल फूड्स. ये जो फूड्स होते हैं ये easily spoil हो जाते हैं unless special methods are used to prevent such spoilage. unless कि हम कोई एक special method apply करें ताकि spoilage को prevent कर सकें. जो perishable foods होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी spoil होते हैं. जितने भी animal foods होते हैं जैसे कि meat, fish, poultry, egg, milk and milk products, और ज़्यादातर जितने भी vegetables और fruits होते हैं वो सारे perishable foods के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज सेमी पेरिशेबल फूड्स. ये वो फूड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी परसेप्टेबल साइंस ऑफ स्पॉइलेज फॉर अ कपल ऑफ वीक्स और फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ वीक्स के लिए और कुछ मंथ्स के लिए जो सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर सेमी पेरिशेबल. हेयर अगेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट मेक्स अ डिफरेंस. ऐसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि सेमी पेरिशेबल फूड्स कब तक चलेंगे. इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि सीरियल्स, जो हम वीट यूज़ करते हैं, राइस हम यूज़ करते हैं 1 साल बाद. जैसे हमने पिछले कुछ यूनिट्स में और सेशंस में पढ़ा था कि 1 साल पुराने राइस ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो वो सेमी पेरिशेबल फूड्स में आते हैं. सेम इन द सेम वे रिफाइंड व्हीट फ्लोर, सेमोलिना, वर्मिसेली, ब्रोकन व्हीट, बंगाल ग्राम फ्लोर, अनियंस, पोटैटोज, गार्लिक, एप्पल, citrus fruits, fats and oils. These are all semi-perishable foods. Next is non-perishable foods. Cereals, pulses, sugar come in this category. Cereal, pulses और sugar जो होता है वो non-perishable foods में आता है क्योंकि ये कभी खराब नहीं होते. They do not spoil unless handled and stored carelessly. जब तक उनको ढंग से स्टोर किया जाए और उनके साथ कोई भी लापरवाही ना बरती जाए तो ये फूड्स खराब नहीं होते. And here again we do need to take special care to make sure that they do not develop insects in storage. Unless and until इनमें insects ना develop हो तब तक ये सही रहते हैं. Now next is the food storage. Now a loss of grain crop at the harvest point to the extent of 5 to 10% of production in almost all developed countries to 50% or more in the case of some of the developing countries is a colossal waste of valuable food resources. Developed countries में 5 से 10% harvested point पे जितने भी grain crops होते हैं उनका नुकसान होता है. और काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जिनमें 50% तक ये नुकसान होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार वेस्ट है कोई भी वैल्यूएबल फूड रिसोर्सेज के लिए. द लॉसेज इन ग्रेन्स एट द फार्म लेवल इन आवर कंट्री आर अप्रॉक्सीमेटली 10%. फार्म लेवल पे जो ग्रेन्स में लॉस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% का होता है, एंड वी लूज ऑलमोस्ट 17 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज एट द फार्म लेवल. नाउ देर आर सम मेथड्स ऑफ फूड स्टोरेज. अब नॉन पेरिशेबल फूड्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं. लाइक यू शुड बी केयरफुल to clean them to remove gravel, husk and other foreign matter and dry thoroughly in the sun.
बहुत केयरफुल होना पड़ता है नॉन पेरिशेबल फूड्स के साथ कि हम उनको अच्छे से उनमें से ग्रेवल और हस्क रिमूव करें, जितना भी फॉरेन मैटर है उसको रिमूव करें। अगर पॉसिबल हो तो उनको धो भी सकते हैं, जैसे कि हमारे वीट और राइस होते हैं उनको धो के सुखा सकते हैं सन के अंडर। यू नीड टू स्टोर देम इन क्लीन कंटेनर्स विच हैव टाइट फिटिंग लिड्स। उन्हें ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे टाइट फिटिंग लिड्स हो, क्योंकि फिर उससे इंसेक्ट्स और रोडेंट्स की एंट्री हम रोक सकते हैं। These containers should be put either in the storeroom or in the storage cupboard in your kitchen. और ये कंटेनर्स को हम स्टोर रूम में रख सकते हैं या फिर स्टोरेज कबर्ड में रख सकते हैं अपनी किचन में। इट इज़ बेटर टू हैव अ स्टोरेज स्पेस away from the kitchen because the temperature in the kitchen are higher than what is ideal for storage. ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम उनको किचन में ना रखें और कहीं बाहर स्टोर रूम में रखें, क्योंकि किचन का टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है बाकी रूम्स के टेम्परेचर से, क्योंकि वहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा काम होता है। देन स्टोरेज ऑफ सेमी पेरिशेबल गुड्स और फूड्स। सम ऑफ द सीरियल प्रोडक्ट्स, roots and tubers, nuts and oil seeds and fruits come under this category. Cereal products should be sieved and cleaned of all such contamination, exposed to the sun for a few hours, allowed to cool and then stored in tightly covered bottles or containers. जो सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें छानना ज़रूरी है ताकि उनमें से फॉरेन मैटर निकल सके, और फिर उनको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है सारी कंटामिनेशन को हटाने के लिए। उसके बाद उनको धो के सन में सुखाया जाता है ताकि वो अच्छे से साफ हो सके। रूट्स एंड ट्यूबर्स आर बेस्ट हंग अप फ्रॉम द सीलिंग इन अ वायर और प्लास्टिक मैश बास्केट। जितने भी रूट्स और ट्यूबर्स होते हैं उनको सीलिंग से लटकाते हैं और kept in mesh containers with which keep them exposed to air circulation. Do not keep them in the kitchen, they need a cool place. ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस और सेमी राइप मैंगोज जो होते हैं वो भी कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलते, और उनको भी बास्केट में ही रखते हैं जो लाइंड हो या फिर पेपर से कवर्ड हो ताकि उनकी ड्राइंग को रोक सके। देन स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल्स। लो टेम्परेचर्स स्लो डाउन स्पॉइलेज इन पेरिशेबल फूड्स। अगर हम उन्हें लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो उसकी वजह से पेरिशेबल फूड्स जो हैं वो कम स्पॉइल होते हैं, बोथ एंजाइमेटिक एज वेल एज दैट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन सब को जो प्रोसेसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नॉर्मली अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज used at home for storage of perishable foods. The level of temperature prevailing inside a refrigerator keeps these in check only for a short while. A domestic refrigerator is normally maintained at a temperature which varies between 6 degrees Celsius and 10 degrees Celsius. Foods can be kept for a longer time in freezing unit than on the shelves. A separate storeroom which should be on the side of the house which gets the least sun. जो स्टोर रूम है वो उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सन सबसे कम हो, क्योंकि ड्राइंग से भी फूड्स खराब होते हैं, और इसीलिए स्टोरेज स्पेस हमारा ऐसी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जो कि बिल्कुल दूसरी साइड पे हो। अ कबर्ड विद शेल्फ इन द किचन। किचन के अंदर भी एक कबर्ड हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारी शेल्फ्स हो ताकि अलग अलग फूड आइटम्स उसमें प्लेस हो सके। एंड अ सेलर और एन अंडरग्राउंड रूम। एक अंडरग्राउंड रूम या फिर सेलर भी हो सकता है जिसमें हम अपनी फूड आइटम्स को जैसे कि सीरियल्स, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों को स्टोर करें, क्योंकि ये एक आइडियल स्टोरेज फैसिलिटी होती है अगर हम एक इंडिपेंडेंट हाउस बना रहे हैं तो। Now here are some questions for you. First is explain the effect of temperature on spoilage of food by microorganisms. And second question is what measures do you adopt for control of pests in your house? Comment. That's all for this session. Thank you and have a nice day.